سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کا سندھ فتح ہو چکا تھا۔ اس وقت راجہ داہر کی سلطنت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ملتان بھی اسی خاندان کی سلطنت میں تھا۔ محمد بن قاسم کی اگلی منزل ملتان تھی۔ اس نے اس علاقے کا جو نقشہ تیار کیا تھا وہ دیکھا اور اس نے جو مقامی رہنما ساتھ رکھے ہوئے تھے انہوں نے اسے بتایا کہ ملتان سے پہلے ایک اور شہر سکہ ہے جو فتح کرنا ضروری ہے۔ آج سکہ کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ یہ دریائے چناب کے مشرقی کنارے پر ملتان کے بالمقابل واقع تھا۔ سکہ اور ملتان کے درمیان اگر دریا نہ ہوتا تو یہ دونوں مل کر ایک ہی شہر بن جاتے۔ سکہ کا حاکم راجہ داہر کے بھتیجے بجے رائے کا نواسہ بجرا تھا اور ملتان کا حاکم راجہ داہر کے بھائی چند کا بیٹا کورسیا تھا، جسے بعض مورخوں نے گور سنگھ لکھا ہے، لیکن زیادہ تر شہادت یہ ملتی ہے کہ کورسیا صحیح نام ہے۔ ککسا نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ کورسیا کے لڑنے کا بھی انداز یہی ہوگا۔ وہ اپنی فوج کو قلعے سے باہر لڑائے گا اور بہتر یہی ہوگا کہ اس کی فوجی طاقت کو قلعے سے باہر ہی کھلی لڑائی میں کمزور کیا جائے۔ محمد بن قاسم کو یہ مشورہ اس لیے پسند آیا کہ وہ سنگ باری اور آتش بازی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس سے شہر کے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ انہی لوگوں سے جزیہ اور دیگر محصولات وصول کرنے ہوتے تھے۔ ان کے گھر اور سامان جلا دینے کی صورت میں وہ کہتے تھے کہ وہ تو تباہ ہو گئے ہیں، جزیہ کہاں سے دیں۔ ایک روز محمد بن قاسم نے اسکن سے کوچ کیا، اب کہ پھر ہرادل دستے کی کمان کسکا اور زائد بن عمیر تائی کے پاس تھی۔ ہرادل سے آگے جاسوسوں کی ٹولی مقامی لوگوں کے لباس میں چلی گئی تھی۔ یہ کوچ کا معمول تھا کہ جاسوسوں کو مقامی بیس میں آگے بھیج دیا جاتا تھا۔ وہ راستے کے خطروں کو دیکھتے اور پیچھے آ کر سپاہ سالار کو خبردار کرتے تھے۔ کہیں گاٹ کا اور کہیں شب و خون کا خطرہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی خطرے ہو سکتے تھے۔ سکہ والے مسلمانوں کی پیش قدمی سے بے خبر نہیں تھے۔ راجہ داہر کی موت معمولی واقعہ نہیں تھا۔ پہلے تو سب کو یہی بتایا جاتا رہا کہ وہ زندہ ہے اور ہندوستان سے فوج لینے گیا ہے، لیکن اس کے بعد باتیا اور اسکند بھی ہاتھ سے نکل گئے اور وہاں کے بھاگے ہوئے حاکم سکہ اور ملتان جا پناہ گزین ہوئے تو سب کو یقین ہو گیا کہ داہر مارا جا چکا ہے۔ اس خبر نے سب کو چوکس کر دیا تھا۔ سکہ کے حاکم نے اپنے جاسوس قلعے سے دور تک بھیج دیے تھے۔ محمد بن قاسم جب سکہ کے گردونواں میں پہنچا تو سکہ کی فوج قلعے کے باہر تیاری کی حالت میں موجود تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کو دور ہی روک لیا۔ اسلام کے محافظوں، محمد بن قاسم نے اپنے لشکر سے خطاب کیا، دشمن ہمارا راستہ روک کر کھڑا ہے۔ اس نے شہر کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ ہم شہر کا محاصرہ نہیں کر سکیں گے۔ یہاں بھی ہمیں اسکند والی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ یاد رکھو، دشمن کے پاس قلعہ ہے جو پسپائی کی صورت میں اسے پناہ میں لے لے گا، مگر ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں۔ ہماری پناہ کھلا آسمان ہے۔ ہمارے ارد گرد دیواریں نہیں اور اوپر چھت بھی نہیں۔ ہمارے سروں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس سے زیادہ محفوظ اور مضبوط کوئی پناہ نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ دل میں بٹھا لو کہ ہم پسپا ہوئے تو اس ملک میں ہمارا کوئی ٹھکانہ اور کوئی پناہ نہیں۔ ساحل بہت دور ہے، وہاں تک ہمیں کوئی زندہ نہیں پہنچنے دے گا۔ ہمارا وطن بہت دور ہے، اب یہی ہمارا وطن ہے۔ یہاں ہم نے مسجدیں بنا دی ہیں۔ یہاں کے بہت سے لوگوں نے ہمارا مذہب قبول کر لیا ہے۔ اس زمین میں ہمارے شہیدوں کا خون جذب ہو چکا ہے۔ یہ زمین ہمارے لیے مقدس ہو گئی ہے۔ اگر اب ہم نے پیٹھ دکھائی تو ہم ذلت کی موت مریں گے اور اگلے جہان میں ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میں جانتا ہوں تم تھک کر چور ہو چکے ہو، تمہارے جسم ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، پھر بھی تم کفر کے قلعوں کو رونتے چلے جا رہے ہو۔ یہ روحانی طاقت ہے۔ تم اب جسم نہیں روحیں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اللہ کا نور بکھیرتے جا رہے ہو۔ تم خوش نصیب ہو کہ اللہ نے یہ فرض تمہیں سونپا ہے۔ دل میں اللہ کا نام رکھو، اللہ تمہیں فتح و نصرت سے نوازے گا۔ مجاہدین کے اس لشکر کی تعداد کم رہ گئی تھی۔ عرب سے کمک آ گئی تھی لیکن اتنی نہیں جتنی کمی واقع ہو گئی تھی۔ رسد بھی پہنچ گئی تھی، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ لشکر کی جسمانی حالت خاصی بگڑ چکی ہے۔ سکہ کے حاکم بجرا نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو اس نے اپنی فوج کو لڑنے کی ترتیب میں کر لیا۔
लेकिन मोहम्मद बिन कासम ने दूर ही पड़ाव डाल दिया। मुजाहिदीन बड़ा लंबा सफर करके आए थे, वो बहुत थके हुए थे, घोड़े प्यासे थे। इस कैफियत में 80 फौज के मुकाबले में आना जो ताज़ा दम थी, अक्लमंदी नहीं थी। रात को पड़ाव के इर्द गिर्द गश्ती पहरा लगा दिया गया और कई मुजाहिदीन रात को तिलावते कुरान करते और नवाफिल पढ़ते रहे। हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासम को हिदायत और अहकाम भेजता रहा। वो ज्यादा जोर याद इलाही पर देता था। मोहम्मद बिन कासम ने उसे अपने हालात से बाखबर रखा हुआ था। दूसरे दिन का सूरज तलू हुआ तो मुसलमान जंगी तरतीब में सिका की फौज के सामने खड़े थे। मोहम्मद बिन कासम ने इस्लामी फने हरबो ज़रब के मुताबिक दरमियान के दस्तों को आगे बढ़ाया। उधर से भी दरमियान के दस्ते आगे आए और एक खून रेस तसादम शुरू हो गया। हिदायत के मुताबिक लड़ने वाले दस्तों को इनके सलार ने पीछे हटाना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन कासम ने दाएं बाएं के दस्तों को पहलुओं की तरफ फैलाकर दुश्मन के पहलुओं पर हमले करने का हुक्म दिया, लेकिन दुश्मन के पहलुओं के दस्ते चौकस थे, वो दिफाई पोजीशन में आ गए, इसलिए मोहम्मद बिन कासम की ये चाल कारगर ना हुई। शाम से कुछ देर पहले बजरा ने अपनी फौज को किले में वापस बुला लिया। मोहम्मद बिन कासम ने किले का मुहासरा न किया, इसकी बजाय ये एहतमाम किया कि किले की दूसरी अतराफ कुछ सवार नफरी भेज दी, जिसके जिम्मे ये काम था कि किसी को किले से निकलकर कहीं जाने न दें, ना किसी बाहर से आने वाले को किले में जाने दें। मकसद ये था कि बाहर की दुनिया से किले का राब्ता तोड़ दिया जाए। मोहम्मद बिन कासम ने रात को अपने सालारों को बुलाकर बताया कि वो लड़ते लड़ते पीछे हटते आएं ताकि दुश्मन किले से दूर आ जाए। ये कोशिश तो की गई थी कि जो कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन इस चाल को कामयाब बनाना था। खतरा ये था कि किले की फौज के पीछे किला था। मुसलमान पहलुओं और अकब में जाने की कोशिश करते थे तो दीवार के ऊपर बर्छियां और तीर आते थे। 4-5 दिन इसी किस्म की जंग जारी रही। किले से दस्ते निकलते, लड़ाई होती और किले के दस्ते वापस किले में चले जाते। इनका नुकसान तो बहुत हो रहा था, लेकिन मुसलमान भी नुकसान उठा रहे थे। दुश्मन के जोशो खरोश में जरा सी भी कमी नहीं आ रही थी। मोहम्मद बिन कासम ने अपने सालारों से कहा कि वो मुजाहिदीन को रोक रोक कर लड़ाएं, आगे बढ़कर टक्कर लें और पीछे हटें। मुजाहिदीन से कहें कि वो अपने आप को थकाएं नहीं, तीरों और फेंकने वाली बर्छियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। पहलुओं के दस्तों को फैलाकर दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा मुतहरक करने की तरकीबें करें ताकि उसे लड़ने का मौका कम मिले और उससे थकान ज्यादा हो। ये एक खास तरीका जंग था जिसमें मुसलमान सलार और सिपाही मुहारत रखते थे। वो जमकर नहीं लड़ते थे, हल्ला बोलकर इधर उधर हो जाते थे। दस्तों को छोटे जैशों में तकसीम कर दिया गया और जैश बारी बारी आगे जाते और हल्ला बोलते थे। इस तरह अपना नुकसान कम और दुश्मन का नुकसान ज्यादा होता था। ये तरीका जंग 3-4 दिन आजमाया गया। किले की फौज का नुकसान हासा हुआ, लेकिन इसमें लड़ने का जज्बा कम नहीं हुआ था। मोहम्मद बिन कासम ने एक तरीका ये भी आजमाया कि किले के एक तरफ लड़ाई जारी रखी और कुछ नफरी दूसरी तरफ भेजकर उधर के दरवाजों तक पहुंचने की कोशिश की। उधर 2 दरवाजे थे, इनके ऊपर दीवार पर तीरों की बुछाड़ें मरकूज की गईं ताकि ऊपर से कोई तीर या बर्छी ना आए, लेकिन ऊपर वाले आदमी जानों की कुर्बानियां दे रहे थे और तीर खाकर गिर भी रहे थे। उन्होंने मुजाहिदीन को दरवाजों तक ना पहुंचने दिया। मोहम्मद बिन कासम को शबान सकफी ने बताया कि दीवार पर जितने भी आदमी हैं वो सब शहर के लोग हैं और फौज बाहर आकर लड़ने के लिए तैयार रहती है। किले के जो दस्ते लड़ने के लिए बाहर आते थे वो अपने जख्मियों को बाहर ही छोड़कर किले में चले जाते थे। लाशों और जख्मियों को देखकर पता चलता था कि किले की फौज का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मुसलमान किले की फौज के किसी भी जख्मी को नहीं उठाते थे, उन्हें मरने के लिए वहीं पड़े रहने दिया जाता था। शुबान सकफी 2-4 जख्मियों को हर रोज उठवा लाता, उनकी मरहम पट्टी करवाता और उन्हें खिला पिलाकर इनसे किले के अंदर के हालात पूछता था। जख्मी अपनी जानें बचाने के लिए सब कुछ बता देते थे। जख्मियों ने बताया था कि दीवार पर शहर के आदमी हैं जो तीर और बर्छियां फेंकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने मंदिर में हलफ उठाया है कि अगर इनमें सिर्फ एक आदमी भी जिंदा रह गया तो वो भी लड़ता हुआ मारा जाएगा, भागेगा नहीं। कुछ दिनों की लड़ाई के बाद जिन 2-3 नए जख्मियों को उठाकर लाया गया, उन्होंने बताया कि फौज की नफरी तेजी से कम हो रही है और रसद और खुराक भी कम रह गई है। रसद मुल्तान से ही आ सकती थी, लेकिन किले के बाहर मुजाहिदीन की हुक्मरानी थी। इनकी मौजूदगी में बाहर से कोई चीज किले तक नहीं पहुंच सकती थी। मोहम्मद बिन कासम ने शहर के लोगों को मुखातिब करके ऐलान कराया कि वो अपनी फौज का साथ छोड़ दें, वरना उन्हें बड़ी खौफनाक कीमत अदा करनी पड़ेगी। ऐलान में ये भी कहा गया कि किले की फौज का नुकसान देखो, ये फौज ज्यादा दिन नहीं लड़ सकेगी और आखिर किला हमने ले लेना है। तुम्हारा फायदा इसमें है कि हमारा इस्तकबाल करो, हम तुम्हें पूरे हकूक देंगे। बुलंद आवाज वाले आदमियों ने किले के इर्द गिर्द घूम कर ये ऐलान कई बार दोहराया। इसके जवाब में शहर के लोगों ने मुसलमानों का मजाक उड़ाया। इन्हें पंडितों ने यकीन दिला रखा था कि फतह इन्हीं की होगी और मुसलमान बुरी तरह तबाह होंगे।
वो ऐलान सुनकर कहके लगाते और इस्लाम को भी बुरा भला कहते थे। मुसलमानों, किले की दीवार से एक आवाज आई, हमने मंदिर में खड़े होकर कसम खाई है कि तुम्हें तबाह करेंगे या खुद तबाह हो जाएंगे। ये आवाज मोहम्मद बिन कासम के कानों तक पहुंच गई। उस वक्त तक मुसलमानों के 3 सलार और 17 बेहतरीन ओहदेदार जूनियर कमांडर शहीद हो चुके थे। मोहम्मद बिन कासम किसी हिंदू की इस ललकार पर भड़क उठा। वो पहले ही अपने इतने काबिल और दुलेर सलारों और ओहदेदारों की शहादत की वजह से गमो गुस्से से भरा हुआ था। खुदा की कसम, मोहम्मद बिन कासम ने कहा, मैं इस शहर का नामो निशान मिटा दूंगा। इसके बाद मोहम्मद बिन कासम ने अपने ऊपर नींद हराम कर दी। 17 दिन लड़ाई जारी रही। 18वीं सुबह किले के 2 दरवाजे खुले और फौज बाहर निकली। ये खास तौर पर नजर आया कि इस फौज में पहले वाला जोशो खरोश नहीं था। एक मुसलमान दस्ता आगे बढ़ा तो किले की फौज की पिछली साफ के आदमी किले के अंदर भाग गए। मोहम्मद बिन कासम ने बांप लिया कि दुश्मन में कोई न कोई कमजोरी पैदा हो गई है। इसमें दम हम नजर नहीं आ रहा था। मोहम्मद बिन कासम ने शदीद हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। सलारों ने ताजीम और तरतीब को तोड़े बगैर हल्ला बोला। दुश्मन दरवाजों की तरफ दौड़ा। तीर अंदाजों को कहा गया कि वो दीवारों पर तीर अंदाजी करें। किले के दस्ते दीवार और मुजाहिदीन के दरमियान फंस गए। इनमें से जिन्हें मौका मिलता था वो दरवाजों में दाखिल होते थे। इनके साथ मुसलमान भी किले में दाखिल होने लगे। आहर मुसलमान फौज के कई दस्ते अंदर चले गए। ये देखकर दीवारों पर जो शहरी तीर चला रहे थे भाग उठे। कुछ देर किले के अंदर लड़ाई हुई, लेकिन किले की बची खुची फौज ने हथियार डाल दिए और पता चला कि किले का हाकम बजरा रात को अपने खानदान समेत किले से फरार हो गया था। फौज को सुबह दूसरे कमांडरों ने किले से निकलकर लड़ने का हुक्म दिया था, लेकिन सिपाही लड़ने पर आमादा नहीं थे। किले की आधी से ज्यादा फौज 17 दिनों में मारी जा चुकी थी। बलाजरी ने लिखा है कि मोहम्मद बिन कासम के 215 सिपाही, 17 ओहदेदार और 3 सलार शहीद हुए थे। किसी भी तारीख में शहीद होने वाले सलारों के नाम नहीं लिखे। मोहम्मद बिन कासम ने हुक्म दिया कि तमाम फौजियों और शहरियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस हुक्म की फौरन तामील की गई। औरतों और बच्चों को अलग कर लिया गया। मोहम्मद बिन कासम ने दूसरा हुक्म ये दिया था कि इस शहर और शहर पनाह को मलबे का ढेर बना दिया जाए। इस तरह इस शहर का नामो निशान उसी दौर में मिट गया था।